होके देखता है मम्मा को, पुट्ठे होके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आप उल्टे हो गए, आपको तो मम्मा सीधा लेटा के गई थी। Welcome back to my channel, The Shining Shina, and Shina is back again with a new vlog, again with a new video. So today I did not vlog much. I did not shoot my daily routine today because I wanted something very important to go live, and it was something which was coming from you all. It was a question, it was a query that was coming from you all, is how did I conceive, what treatment did I get to conceive, as I mentioned in my last videos where I was telling you about my first trimester and my pregnancy story, and I told you that I took some treatment to get pregnant, and so yeah, this video is all about that, and I'm today going to talk about that. So yes, because I want to help you people who are trying to conceive, and I don't want to make this video go late. चाहती हूँ जो जिस चीज़ ने मुझे help किया, the doctor that helped me in this treatment, the treatment that helped me, I want that to go up in front of you all. And yeah, so let's start with the video. So first of all, I really want to put out the hair that I had a pregnancy before Mehnoor. So I was pregnant before Mehnoor in 2019, and that pregnancy went really well for 3 months. But when I was 3 months and 8 days pregnant, I had a very weird miscarriage symptom, which was like my water bag burst. The water जिसमें बेबी फ्लोट करता है जब जो बैग होता है, I think it is called amniotic sac, it bursted out, and while sleeping I was just sleeping and it had burst, and by the time I came to know, okay, this is a big story, what happened, how happened, I just want to tell you, because अगर मैं इस वीडियो में उसके बारे में बात करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा. I just really want to mention that I had a miscarriage when I was 3 months 8 days pregnant, and yeah, so that miscarriage was done through normal delivery. I mean, that abortion was done through normal delivery when the doctor said that baby cannot survive, and so it was done through normal delivery. That pregnancy was natural. So yeah, that pregnancy was totally natural conceiving. I did not do anything. It was natural conceiving. After 2 years of my marriage, I conceived naturally. We planned and we conceived naturally, though we took 1 year to conceive, but it was conceived naturally. After the miscarriage, the doctor and all other people said that I will be able to conceive real soon now, because once that your ovary and uterus are used to this, are used to producing eggs, are used to having a baby, so they would actually accept the external particles, the sperms, very much easier, and you will be able to be pregnant very easier. But this wasn't true in my case. After my miscarriage, I was actually in depression for 3 to 4 months. I was in severe depression for 3 to 4 months, and due to that severe depression, I don't think so कि depression में जो इंसान बहुत ही दुखी रहता है, रोता रहता है, पागल रहता है, मैं बहुत दुखी रहती थी, मैं बहुत रोती रहती थी, मैं हर छोटी चीज़ पे रोती थी, and even मेरी गौतम की बहुत लड़ाइयाँ होने लग गई थी. We used to fight a lot. It was a big fight वाला fight. So I believe that डिप्रेशन में रहने से तो कोई कंसीव नहीं कर सकता. I couldn't conceive in those 3 to 4 months. I guess it was reason of depression. Then we also tried naturally. I was fine. I was stable after a few months because I got busy into my business. I pursued my makeup artist business, like full-time business, full-time profession. And मैं बहुत इसमें बिजी हो गई.
करते 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 the whole 2019 passed and then 2020 came and at that point of time I totally forgot about it कि मुझे कंसीव भी करना है। मैं बहुत ही केयरफ्री हो गई थी, मैं बहुत ही टेंशन फ्री हो गई थी कि यार ठीक है देखी जाएगी, होगा या नहीं होगा देखी जाएगी। बट ऑब्वियसली there were so many questions, there were so many expectations inside my heart and गौतम के मन में तो हमारे रिलेशनशिप में एक कमी सी रह गई थी, बिकॉज अगर ना होता फर्स्ट टाइम में तो सही रहता, वो हो गया था तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हमें हो रही थी, ज़्यादा मन कर रहा था कि यार अब क्यों नहीं हो रहा। सो या that's mommy life. Okay, I really want to say कि हाँ 2020 में क्यों नहीं हो रहा। Then what happened in 2020 February I went to a doctor which is in Rajouri Garden. It is in hospital MKW. I will not name that doctor because obviously उस डॉक्टर के पास मेरा ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं रहा था। शी वॉज माई भाभीज डॉक्टर, मेरी जेठानी की डॉक्टर थी, मेरी जेठानी के सारे बच्चे उस डॉक्टर के थ्रू हुए थे। तो मैं उन डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट लिख दिए। उन्होंने मुझे फॉलिकुलर स्टडी का टेस्ट लिखा। follicular study I will explain further क्या होता है। she wrote follicular study test and then she gave me some folic acid tablets, some multivitamins. That is all she wrote for me, prescribed for me, and I started taking that and she said कि next cycle में आना। So I went to her in the month of February। तो उसने कहा मुझे next cycle में आना, आप मार्च में आना मेरे पास menstrual cycle में, ठीक है। तो क्या हुआ, what happened, I was taking those medicines and then suddenly lockdown happened. Yes, then suddenly lockdown happened। 22 मार्च को प्रॉपर लॉकडाउन, जब जनता कर्फ्यू लगा था उसका प्रॉपर लॉकडाउन लग गया था। then lockdown happened and obviously उन्होंने क्लिनिक नहीं ओपन किया। she was not operating at the clinic and she was not even coming to the hospital। तो मेरी एक फैमिली डॉक्टर है, शी इज़ अ गायनेक एंड शी इज़ डॉक्टर निधि सूद। शी हैज़ बीन माई फैमिली डॉक्टर सिंस मेनी ईयर्स नाउ, एवरीवन। सो शी इज़ बीन टेकिंग केयर ऑफ अ फैमिली, हर चीज़ में, हर प्रॉब्लम में वी यूज टू गो टू हर नर्सिंग होम। शी हैज़ अ नर्सिंग होम नियर माई हाउस। At first why I did not go to her because I wanted कि यार चलो डॉक्टर चेंज करके देखते हैं, क्या पता कुछ और किसी डॉक्टर पे चले जाएं। जो लास्ट मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था वो डॉक्टर निधि सूद पे ही चल रहा था, जो लास्ट प्रेगनेंसी का था। तो इस पर मुझे था कि चलो डॉक्टर चेंज करके देखते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली व्हाट शुड आई से, लॉकडाउन हो गया, वो डॉक्टर आई ही नहीं। सो देन आई वेंट बैक टू माई ओन फैमिली डॉक्टर हु इज गायनेक, डॉक्टर निधि सूद। And I went to her and then I told her कि मुझे उस डॉक्टर ने follicular study नहीं किया। She said yes, go for the follicular study now। So yeah, now this is about कि 2 महीने तो लॉकडाउन ही चला था। So I went to her in May। I was like yeah, I can't waste more time। Already 1 साल होने जा रहा है, 1 साल से भी ऊपर होने जा रहा है that we are trying to conceive। So I need to go to her। Then she said कि okay, उन्होंने follicular study बोली है, आप follicular study के लिए ही जाओ। डॉक्टर निधि said this and then I went to the follicular study। Now what is follicular study test, why it is suggested? Now what my treatment is, my treatment was in IVF। it was the follicular study test or the treatment that was given to me was a part and can be a part of IVF, but it wasn't IVF। okay, it was a small treatment to ट्रीट इनफर्टिलिटी एट फर्स्ट गो, क्योंकि मेरे सारे टेस्ट में जो हमने टेस्ट करवाए थे, मेरे जो टेस्ट हुए थे उसमें सब कुछ नॉर्मल था। देन व्हाट इज फॉलिकुलर स्टडी? फॉलिकुलर स्टडी इज अ स्टडी टेस्ट, इज अ टेस्ट ऑफ द follicles that are made in ovaries that contains eggs। फॉलिकल्स में एग्स होते हैं, ओवरीज में फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स में एग्स होते हैं। तो इसका टेस्ट होता है, इसका टेस्ट डेली होता है। इट इज स्टार्टेड आफ्टर once you have ended up with your menstrual cycle। उसके ही नेक्स्ट डे, जिस दिन आपको menstrual cycle खत्म होगा उसके ही नेक्स्ट या 1 डे छोड़ के आपको इस टेस्ट के लिए जाना होता है। एंड यू हैव टू गो रेगुलरली फॉर लाइक 10-11 डेज, जब तक आपका ओवुलेशन का डे नहीं आता। तो हमारा ओवुलेशन का डे होता है 12, 13, 14, 15 ऐसे डेज होते हैं ओवुलेशन के, ठीक है। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है, जब आपका एग रिलीज होता है उसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो अंटिल द डेट, जब तक आपका ओव्यूलेशन का टाइम नहीं आता, तो कैसे पता लगता है फॉलिकुलर स्टडी में? दे स्टडी द साइज ऑफ द फॉलिकल्स एवरी डे।
एवरी डे दे नोटिस द साइज ऑफ द फॉलिकल्स। तो पहले साइज कुछ mm का होता है, छोटे mm का होता है, 3 mm, 4 mm, 5 mm, दोनों ओवरीज में कुछ कुछ फॉलिकल्स होते हैं। 2 ओवरीज होती है ना, तो दोनों ओवरीज में फॉलिकल्स होते हैं। तो क्या होता है कि मेरा एक साइड पे फॉलिकल बहुत अच्छे बन रहे थे और एक साइड पे फॉलिकल्स बनते थे, एंड 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब स्टडी करते थे वो रप्चर हो जाते थे, मतलब फट जाते थे, फॉलिकल्स एक साइड पे नहीं होते थे। तो मेरा राइट साइड पे फॉलिकल बहुत अच्छा बन रहा था, जो राइट साइड की ओवरी थी। आई गेस लेफ्ट, आई डोंट रिमेम्बर, देयर वाज वन साइड लेफ्ट या राइट जहाँ पे मेरा फॉलिकल बहुत अच्छा बन रहा था। और एंड वहाँ पे then they wait for the follicle to reach at the size of from 18 mm to 20 mm something करके। इस साइज का जब आपका फॉलिकल हो जाएगा देन आपको डॉक्टर के पास जाना है। तो ये फॉलिकल स्टडी रोज होती है, यू हैव टू गो रोज या फिर एक दिन छोड़ के, until unless from the day you end your menstrual cycle, और जब दूसरी साइकिल का स्टार्टिंग होती है फर्स्ट डे दैट, एंड देन until that follicle size reaches to 18 to 20 mm के साइज के आसपास। सो मेरा एक फॉलिकल मेरा पहुंच गया था 22 mm के आसपास, आई गेस या। देन आई वेंट टू द डॉक्टर टेकिंग दैट टेस्ट। मैं डॉक्टर के पास गई, मैं रोज जाती थी डॉक्टर के पास, बाय द वे वो टेस्ट लेके, जब मैं टेस्ट के लिए जाती थी तब मैं डॉक्टर के पास जाती थी। आई वेंट टू द डॉक्टर, then the next step in this treatment, doctor gave me HCG injection shot, yes। and what is HCG? अब HCG वही होता है हार्मोन जिससे आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट डिटेक्ट कर पाते हो। तो आपके यूरिन में ना HCG रिलीज होता है जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, तो वो प्रेगनेंसी टेस्ट जो होता है HCG डिटेक्ट करता है। एंड दिस HCG शॉट is also HCG injection or HCG hormone which is induced into your body through injection is also used to rupture the follicle and to trigger the follicle to release the eggs। जब eggs release होते हैं तो ही ovulation होता है। तो जब मेरा follicle का size 20 mm के आसपास पहुंच गया था, then what she did, she gave me a injection, she gave me a HCG injection shot, एंड वो इट इज कॉल्ड, मैं ना उसका जो फुल फॉर्म है HCG का हार्मोन का मैं नीचे डाल दूंगी, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वर्ड, ह्यूमन कोरियोनोनिक कुछ ऐसा होता है, गोंडोट्रिन, तो आप पढ़ लेना। तो इसको ये बोलते हैं। तो इस हार्मोन से, इस इंजेक्शन से क्या होता है कि मेरे फॉलिकल्स ट्रिगर हुए, एंड फॉलिकल्स जब ट्रिगर होके 36 to 40 आवर्स के बीच में दे रिलीज द एग्स, mature eggs which comes down to the fallopian tube। हमारे एक ट्यूब होती है जो fallopian tube के थ्रू नीचे आता है वो है, then it is ready to be fertilized। So yeah, at that point of time the doctor tells you to try, okay? So you know what does that mean? Doctor tells you to try at that point of time when you get HCG shot, the doctor tells you to try for those 2 to 3 days from the day HCG शॉट लेने से एक दिन पहले, HCG शॉट लेने के दिन, एंड उसके बाद भी 1-2 दिन तक शी वांट्स यू टू ट्राई। एंड once you get that HCG shot, your egg will be released in 36 to 40 hours of HCG shot, and when the eggs are mature, because जो इतने mm का फॉलिकल होता है उसमें eggs mature हो जाते हैं, so it's like a artificial ovulation ट्रिगर करना, artificially ovulation ट्रिगर करना। अदरवाइज ओव्यूलेशन हर women के अंदर 13-14 डेज पे हो जाती है। कभी कभार you don't know the exact time कि ओव्यूलेशन कब हो रही है, तो it just helps you to ovulate at your own choice, at your own time। तो ऐसे होती है। इसीलिए ना डॉक्टर सेड कि अगर इस पॉइंट पे तेरा कंसीविंग हो गई, अगर इस इंजेक्शन में तेरी कंसीविंग हो गई पहली बार में तो वेरी गुड, नहीं तो आप 3 months तक ऐसे ही ट्राई करना। डॉक्टर सेड विदाउट एनी ट्रीटमेंट, शी वांटेड मी टू ट्राई फॉर 3 months just like that। Fortunately, I conceived at the first go only। I did not know I conceived, I was dicey, I think I would conceive 10% मेरे दिमाग था I would conceive, but 90% था maybe I'm not that lucky person, मुझे शायद और try करना पड़ेगा। But fortunately the treatment given by Dr. Nidhi Sood actually worked for me। I conceived through this treatment and I was really lucky to conceive such in just first go। So yeah,
दिस इज अ ट्रीटमेंट, 2 स्टेप ट्रीटमेंट था. एक फॉलिकुलर स्टडी होती है जिसके लिए आपको रोज जाना पड़ता है, एंड यू हैव टू गो जस्ट नेक्स्ट, लाइक आपका जब मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड होता है उसके नेक्स्ट डे ही आपको स्टडी के लिए, आपको टेस्ट के लिए जाना पड़ता है. आपको रोज टेस्ट के लिए जाना पड़ता है. रोज आपके फॉलिकुलर का साइज लिखा जाएगा. आपको रोज डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर आपके फॉलिकल्स का साइज चेक करेगी. डॉक्टर देखेगी कोई फॉलिकुलर फट रहा है, कोई बन रहा है, कोई कैसे है, डॉक्टर वो चेक करेगी. अगर डॉक्टर को लगता है आपको और आगे स्टडी करते रहना है, वो करवाती रहेगी. फिर डॉक्टर चेक करेगी कि अब फॉलिकुलर का साइज एक्सपेक्टेड फॉलिकुलर के साइज जैसा हो गया है. जब मुझे इंजेक्शन देना है तो फॉलिकुलर का साइज आपका होना चाहिए 18 से 20 mm के बीच में, उसके आसपास. जब इतना साइज हो जाए तो 20 से अच्छा बड़ा होगा तो बहुत अच्छा होगा. जब इसके आसपास होगा तो डॉक्टर आपको HCG का शॉट देगी. HCG के शॉट से जो क्या होता है, ये हार्मोन होता है जिससे ओवुलेशन ट्रिगर होता है, फॉलिकुलर ट्रिगर होते हैं और फॉलिकुलर रप्चर हो जाते हैं, फट जाते हैं और वो मैच्योर एग रिलीज करता है. वो वाला फॉलिकुलर रप्चर होगा जो बड़ा फॉलिकुलर होता है, जो 20 mm के आसपास होता है. व्हेन वो एग रिलीज करता है, एग नीचे आता है, एंड दैट एग इज रेडी टू बी फर्टिलाइज्ड, विद द स्पर्म टू प्रोड्यूस टू गेट यू प्रेग्नेंट. ठीक है, सो ऐसे होता है. ये ट्रीटमेंट मुझे दिया गया था एंड इट वर्क रियली वेल फॉर मी. So it wasn't IVF. I asked doctor, it wasn't IVF. It can be a part of IVF sometimes, but मेरी प्रॉब्लम इतनी सीरियस नहीं थी कि मुझे IVF करना पड़े, because I had already conceived naturally once. So मेरा प्रॉब्लम इतना सीवियर नहीं था, because I was producing eggs, I was producing follicles and eggs. but पॉइंट ये था कि वो एक ही पार्ट में ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे थे और दूसरे ओवरी में प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे, एक ही ओवरी में प्रोड्यूस होते. बट आई वॉज प्रोड्यूसिंग एग्स. मैं डॉक्टर का नाम सब कुछ जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. मैं स्क्रीन पे भी डाल देती हूँ डॉक्टर का नाम, डॉक्टर का नंबर, डॉक्टर का एड्रेस. गूगल से स्क्रीनशॉट लेके नर्सिंग होम का एड्रेस भी डाल देती हूँ. ऑल दोज हु आर ट्राइंग टू कंसीव एंड हु हैजंट कंसीव्ड येट, आई टोटली बिलीव शी इज द वन. शी विल हेल्प यू सो मच. बट make sure that you give the reference of my name, give her reference of Shaina, show her my YouTube channel, show her this video, and even say कि मुझे गुरचमन ने भेजा है. Yes, I'm writing my name here. This is my legal name, this is my official name, गुरचमन कौर. अगर आप कहोगे मुझे गुरचमन ने भेजा है, so she will totally recognize you and help you in any way that you want, because मेरा उनके साथ बहुत अच्छा family term है. She will treat you very nicely. So make sure you go, take my name, take my reference and say गुरचमन ने भेजा है. She will definitely help you. She has helped me. She will help you. And मुझे लगता है कि वो इसकी नानी है. बेसिकली मैं उनको इसकी नानी बोलती हूँ, बिकॉज उन्होंने ही सबसे ज़्यादा मेहनत करी है. बिकॉज मुझे पूरे प्रेगनेंसी में जब प्रॉब्लम हुई है, शी हैज़ पिक्ड माई फोन इन वन गो. शी हैज़ हेल्प मी इन वन गो. 1 मिनट नहीं लगाती थी मेरी हेल्प करने में. लेट नाइट भी मैंने फ़ोन किया ना, उन्होंने तब भी मेरा फ़ोन उठाया. शी वॉज वेरी मच इल कोरोना के टाइम पे, लास्ट ईयर 7th month में, एंड शी पिक माई फोन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो. शी वॉज सो मच इल. उन्होंने तब भी बोला आप हॉस्पिटल जाओ, मैं आपको फ़ोन कर देती हूँ. सो शी इज़ वेरी हेल्पफुल. शी विल टेक केयर ऑफ यू एंड योर चाइल्ड वेरी मच. सो डोंट वरी, शी इज़ द बेस्ट डॉक्टर आई हैव एवर मेट. एंड मैं अपनी नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए भी डेफिनेटली उनके पास जाऊंगी. Yes, I hope I conceive naturally, but if not, then I'll go to her. So yeah, this is it, and I hope this video will help you. The doctor will help you. Don't forget to give her my reference. Give her my reference. Just talk to her, say my name, Guchaman Kaur, and show this video to her. She will totally treat you really well. So yeah, I hope you like this video. This video helped you so much, and for more such videos, for more informative things, you need to subscribe to my channel and like, share and subscribe, and just share this video. जिसको भी need है इस video की, जिसको भी need है इस information की, just share this with the people. Okay, and yeah, I will see you tomorrow 8 AM. Bye bye.